So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel. So today's video is about dream college of almost all the students, that is IIT Bombay. So for that, Sayan is there with us. I thought like people who already studied there can tell more about the college. So he already studied from IIT Bombay, and today he is going to tell us more about the academics, curriculum, placements, and many more things. So hi Sayan, can you please introduce yourself? Yeah, hi Mansi, for thanks for having me. So yeah, hi everyone. I think you know me in someone in LinkedIn or someone in YouTube. So I am Sayan. So for my academic backgrounds, I am from West Bengal and I have completed my BTech in 2020, 2018, sorry, 2022 from Calcutta University. And after that, I have given GATE in 2021 and 2022 in third year and fourth year. In 2022, I have secured All India Rank 15 and in GIT CS branch. And after that, I got admitted in IIT Bombay, CS MTech, and I completed MTech after 2 years, like 2024, from IIT Bombay. And right now, I'm working in Microsoft as ASD. Yeah, Great. that's it. Very great, Anish. So let's start the podcast. So can you give like brief overview how you prepared for GATE from where you prepared? Yeah, basically for GATE, it was a journey from my second year itself. So means I have joined MedEasy, and from the second year, I means in the third year, almost I finished almost all the subjects, like 10 to 11 subjects. But the mistake I was done, ki I have not done the revision properly, and I have not prepared well, and I have not done the test series also. Okay, तो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा कि मेरे थर्ड ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसके लिए मेरा Hmm. 3000 रैंक आया, ठीक है। तो Hmm. उसके बाद मैं रेक्टिफाई कर खुद को कि व्हाट आई एम लैगिंग एंड व्हाट आई हैव टू वर्क हार्ड. So in the fourth year, within month of August, I finished all my syllabus, and Mm-hmm. then I rigorously revised, practiced from the previous year question. So in the third year, what I did the mistake कि मैंने PYQs को इतना इम्पोर्टेंट है वो मैं नहीं समझा था कि PYQs इतना इम्पोर्टेंट होगा. देखो मतलब गेट पे जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो PYQs का सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिपीट होता है, ठीक है। तो तुमको PYQs बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो मैं PYQs बहुत अच्छे से करा. उसके बाद टेस्ट सीरीज, मैं मल्टीपल टेस्ट सीरीज यूज किया, क्योंकि जो कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो उसका अगर टेस्ट सीरीज तुम यूज करोगे सिर्फ उसका, तो तुम्हारा थोड़ा बायसनेस आता है, क्योंकि जो सर तुम्हारा क्वेश्चन प्रिपेयर हाँ, कर रहे हैं वही सर तुमको पढ़ा रहे हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मल्टीपल कोचिंग्स का मल्टीपल टेस्ट सीरीज यूज करने के लिए. तो उसके बाद तभी प्रॉपर आगे रिवीजन स्ट्रेटेजी एंड विथ प्रॉपर टेस्ट सीरीज आई गॉट दिस रैंक. really it's really inspiring journey. So let's come into IIT Bombay thing. So difference, can you tell little bit of difference like MTech और MS क्या difference है और curriculum में क्या difference है basically? ओके, तो बेसिकली एमटेक एंड एमएस बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब क्वेश्चन होता है कि भैया एमएस में क्या एक्स्ट्रा होता है या क्या लैग होता है एमटेक से, या एमटेक में क्या एक्स्ट्रा होता है. तो एमटेक एंड एमएस बेसिकली डिफरेंस यही है कि एमएस इज मोर फोकस्ड ऑन योर रिसर्च वर्क, ओके, एंड एमटेक इज मोर फोकस्ड ऑन योर करिकुलम. तो एमटेक में 2 साल बाउंडेड है एंड एमएस में 2.5 से 3 साल बाउंडेड है. एंड हम्म. एमटेक में दो स्ट्रीम, दो अलग अलग है, एमटेक टीए एंड एमटेक आर ए. एंड एमएस में भी एमएस टीए एमएस आर ए. तो बेसिकली एमटेक में हम लोग को 2 साल के अंदर एंड एमटेक आर ए को 3 साल के अंदर सेम नंबर ऑफ लाइक 11 इलेक्टिव्स एंड 4 या 3 और 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करना पड़ता है. एंड एमएस हम्म. में वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़ा कम हो जाता है. एंड अच्छा. रिसर्च वर्क हमारा एमटीपी जो 1 साल का होता है, एमएस वर्क का एम आई थिंक से 2 से 2.5 साल का होता है एमटीपी, ठीक है, मास्टर्स का थीसिस. तो बेसिकली हम्म. यही फर्क है और कुछ नहीं है. तुमको रिसर्च और भी फोकस करना पड़ेगा. इट्स मोर लाइक कि स्मॉल पीएचडी टाइप दी एमएस, स्मॉल PhD. ठीक है. या और लाइक प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से MS कैसा रहेगा इफ एनीवन हैव देखो, मल्टीपल ऑफर्स हाँ दूसरी देखो, आईआईटीज मैं में? बोलूंगा कि हमारे आईआईटी बॉम्बे में जितना भी एमएस स्टूडेंट है उसमें तुम अगर अच्छे से रिसर्च करोगे तो तुम उस डोमेन में बहुत अच्छा कर लोगे ऑलरेडी, रिसर्च ओरिएंटेड. एंड
मैं ये देखा हूँ कि हमारे एमएस एंड एमटेक दोनों का बराबर प्लेसमेंट होता है। अच्छा। ठीक है। अगर कोई बंदे का नहीं हो रहा है प्लेसमेंट, तो ऐसा भी हुआ है कि एमटेक का भी नहीं हो रहा है, एमएस का भी नहीं हो रहा है हम्म। आफ्टर सम डेज। ओके, ऐसा नहीं कि ओके। एमएस का ही बचा हुआ है, एमटेक का भी थोड़ा अच्छा। थोड़ा बचा रहता है, एमएस का भी बचा रहता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर तो हाँ मतलब पार्शियलिटी नहीं है ना कुछ प्लेसमेंट नहीं, में। पर्सनैलिटी नहीं है, बट हाँ, मतलब एमएस, कुछ कुछ कंपनीज ऐसा भी है कि एमएस बच्चे ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि उसका अच्छा। रिसर्च एरिया हाँ, रिसर्च वाले। कॉन्फाइंड होता है कि इस रिसर्च एरिया के अंदर का मुझे स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। तो तब तुमको एज मिलेगा। ये तो है। एंड करिकुलम कैसा है? इज इट हेक्टिक और काइंड ऑफ चिल? See, I was an MTech TA student and MTech TA was very hectic, वेरी मच ओके। हेक्टिक। ओके, तो फर्स्ट हम्म। सेमिस्टर हम लोग को जस्ट बूम था, मतलब स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, हम लोग को हम्म। पता भी नहीं चला, हाँ। उसके अंदर कुछ कुछ नहीं कर पाए। तो फर्स्ट सेमिस्टर वाज द मोस्ट हेक्टिक सेमिस्टर ऑफ आवर 4 सेमिस्टर्स। ओके, तो फर्स्ट सेमिस्टर में अगर तुम झेल लोगे तो उसके बाद तुम फिर धीरे तो धीरे हाँ। सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। यस। एंड एमएस में क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है, मतलब तुम्हारा 3 साल 2.5 साल से 3 साल होता है। नंबर ऑफ हम्म। कोर्सेज थोड़ा कम होता है, बट तुमको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको अगर रिसर्च में फोकस ज्यादा करना है तो तुम एमएस चूज करो, उसमें करिकुलम वाइज हेक्टिक कम होगा, बट रिसर्च वाइज हेक्टिक थोड़ा ज्यादा होगा एमटेक से। हम्म। और फिर लाइक कैन यू गिव सम ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एमटेक करिकुलम? लाइक कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? लाइक बुके कोर्सेज होते हैं या यू कैन चूज एनी इलेक्टिव्स? हाँ, तो मैं जैसे बोला कि 11 इलेक्टिव्स हम लोग को चूज करना पड़ता है, 11 सब्जेक्ट्स आई थिंक चूज करना पड़ते हैं उसमें से। अब हम लोग को 3 स्ट्रीम रहता है, एआईएमएल या सिस्टम्स या थ्योरेटिकल। ओके। ओके, तो इस पूल में से मैं किसी भी इलेक्टिव में चूज कर सकता हूँ, कोई अच्छा, बाउंड्री नहीं कोई है। नहीं, अच्छा बाउंड्री ठीक नहीं है, है। तो अगर तुमको चाहिए कि मुझे एआईएमएल डोमेन में करना है एमटेक सीएस होते हुए भी, तो तुम सारे सब्जेक्ट, एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, सब कुछ तुम उस साइड ले सकते हो। तुमको अगर सिस्टम हम्म। में अच्छा लग रहा है तो ओएस डीबीएमएस सब कुछ ले सकते हो उसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ओके, तो एंड थ्योरेटिकल मतलब एल्गोरिथम एंड ऑल। फिर तो सही है, हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हाँ, स्टूडेंट्स कर सकते हैं कुछ भी एंड कुछ कुछ सिलेक्ट। सब्जेक्ट्स रहता है कि जो कंपलसरी है वो बहुत ही कम रहता है, मतलब हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक एक एंड सेकंड सेमेस्टर में दो, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, सही है फिर तो। और कोडिंग कल्चर कैसा है उधर? देखो, कोडिंग बहुत ही अच्छा कल्चर है, मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन ये होता है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, सारे तरीके यस, से। सिर्फ डेफिनेटली। पढ़ाई में अच्छा तो नहीं होगा। तो मैं आके देखा कि इधर कोडिंग सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं वही। बीटेक में उतना अच्छा कोडिंग नहीं करता था। तो इतने अच्छे पेयर्स है, मतलब इतने अच्छे कोडिंग में पेयर्स है, तुम खुद को करना ही पड़ेगा उस। ठीक है, तो मेरे साथ भी वो ऐसा ही हुआ। एंड इवेंचुअली मैं 1 साल में, मतलब एकदम जीरो से जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। हाँ वही, तो वो मतलब बहुत हेल्प पेयर होता है। कोडिंग, हाँ, मतलब तुम अगर कोडिंग कल्चर सुनोगे तो सारे बच्चे कोडिंग करेगा ही करेगा, तो तुमको उसमें हेल्पफुल होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होता है एग्जैक्टली। कि जहाँ पे कोडिंग कल्चर उतना अच्छा नहीं होता। वही। आई डोंट मेंशन इन एनी नेम, बट उधर कोडिंग उतना जरूरत नहीं होता, बट अल्टीमेटली तुमको अगर कंपनी जाके तुमको कोडिंग ही करना है। ठीक है, तुम अगर हम्म। इस 2 साल में कोडिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए वो परेशानी का ही होगा हाँ वही बाद में। फिर तो। एंड हाउ इज कैंपस लाइफ? मेंशन गुड थिंग्स, लाइक क्या क्या मेस कैसी है? हाउ इज टेक फेस्ट गोइंग ऑन? सम क्यूरियोसिटी लाइक स्टूडेंट्स को हो रही है अभी से जो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करने वाले हैं, सो टेल समथिंग अबाउट कैंपस लाइफ। देखो, मेरा एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन था, आईआईएससी चूज करूंगा या आईआईटी बॉम्बे चूज करूंगा। तो हम्म। आईआईटी बॉम्बे चूज करने का ओवर आईआईएससी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेट रीजन यही था कि कैंपस लाइफ एंड आईआईटी का कैंपस लाइफ, वाइब्रेंट जो कैंपस लाइफ होता है उसको मुझे, मतलब, फील करना है। हाँ। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे का कैंपस लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है, मतलब इसमें तुमको स्पोर्ट्स, कल्चरल, कुछ ना कुछ तुमको होता ही रहेगा। कैंपस में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ठीक है, तो तुमको अगर कोई भी क्रिएशनल चीज में तुमको हैबिट है या तुमको कुछ परस्यू करना है तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, एंड टेक फेस्ट एंड ऑल, कल्चरल फेस्ट एंड ऑल, तुमको पता ही है कि मूड इंडिगो कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब मतलब कल आईआईटीज में बहुत अच्छा होता है, तुमको सारे रात, मतलब आईआईटीज में पूरे रास्ते में पूरे लोग मिलेगा, 3 बजे तुम निकल जाओ पढ़ के, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक बिल्कुल। है, एंड वेदर भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता बॉम्बे में। अच्छा। एंड मेस में क्या सिस्टम है उधर? लाइक डिफरेंट
मेसेस है कितनी, लाइक वेज नॉन वेज सेपरेट होता है, मिक्स होता है, लाइक सम पीपल आर प्योर वेजिटेरियन, तो मे बी। हाँ मतलब तुम बोल सकते हो कि आईआईटीज में हर एक हॉस्टल के नीचे एक एक मेस होता है। हम्म। ठीक है, एंड हॉस्टल में मेनली वेज रहता है, एंड तुम पे करके नॉन वेज ले सकते हो। ठीक अच्छा है, ऐसा। अलग से। तो ओके। मोस्टली वेज रहता है, एंड कुछ स्पेशल डिनर होगा तो उसमें वेज एंड नॉन वेज अलग अलग सेग्रीगेशन तुमको रहता है। अच्छा। उसमें कुछ दिक्कत नहीं, अगर कोई वेज रहेगा तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता। सही है। एंड खाना और तो हाँ, ठीक है, मतलब खाना बहुत अच्छा तो नहीं है, बट चल जाएगा। अच्छा, कैंटीन्स भी अलग अलग बहुत सारी हाँ, होगी, लाइक कैंटीन तो बहुत है, एक्सप्लोर बहुत करने के लिए सारे तो। कैंटीन है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, नाइट लाइफ भी बहुत हाँ। अच्छा है, मतलब तुम निकल जाओ 3 बजे, उसमें भी खाना मिल जाएगा, एंड डिलीवरी सिस्टम भी है कैंपस के अंदर, अच्छा वो भी है, कैंटीन हाँ। की। हाँ, तो सही है, फिर कैंटीन तो का बहुत एक बढ़िया अलग है। से ऐप है। कैंटीन अच्छा। का अलग से ऐप है, तुम ऑर्डर करो, कैंटीन का खाना भी मिल जाएगा। वाह, सही है। और लाइक व्हाट अबाउट समर इंटर्नशिप, इज इट अलाउड देयर? इन आईआईटी बॉम्बे फॉर एमटेक टीए इट्स नॉट ऑफिशियली अलाउड। ठीक है, अच्छा। फॉर एमएस पीपल इफ गाइड अलाउज देन ही और सी कैन गो। ओ, फिर तो हाँ, तो इंटर्नशिप ये, का कुछ। हाँ मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, तुम इंटर्नशिप को परसू नहीं कर सकते, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, बट इसको एज ए पॉजिटिव सेंस में अगर देखेंगे तो हम लोग को 1.5 साल पूरा मौका मिल रहा है खुद के ऊपर डेवलपमेंट करने का, हाँ कोडिंग बिल्कुल। स्किल एंड ऑल दी स्किल्स जो प्लेसमेंट है के लिए भी, बिफोर और प्लेसमेंट। यस, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट सीजन, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर टाइमिंग मिलता है। एंड एमटेक कर रहे हैं मतलब हम लोग को रिसर्च में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये आईआईटी बॉम्बे का माइंडसेट है कि एमटेक अच्छा। कर रहे हो मतलब थोड़ा आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च का या देश का कुछ रिसर्च का कुछ कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, नॉट, हम्म। वी आर नॉट द बीटेक पीपल, वी आर एमटेक, वी आर डूइंग मास्टर्स, सो वी शुड डू सम रिसर्च। तो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होता है, इसके लिए हम लोगों का नहीं होता है अलाउड अच्छा, इंटर्नशिप। तो फिर समर वेकेशन में रिसर्च करना होता है या फिर वेकेशन मिलता है आप लोगों को? एक महीने का तो वैकेशन मिलता है, मतलब एक अच्छा। पूरा नहीं, तुम बोल सकते हो कि 20 दिन का वैकेशन मिल जाता है। अच्छा। अच्छा। सही है। बट वो गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अगर घर से भी काम करना चाहते हो कर ही सकते हो, अगर गाइड अलाउ कर दे तो अच्छा, कोई फिर तो दिक्कत हाँ नहीं हाँ, आराम से प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन है। अच्छे से हाँ। होती है। हम्म इट्स हम्म हम्म। बेस्ट टाइम, लाइक वेकेशन में ही जो टाइम मिलता है बहुत अच्छे से हाँ, प्लेसमेंट के नहीं लिए। तो मतलब इतना हेक्टिक कोर्स करिकुलम रहता है तो उसके अंदर प्रिपरेशन नहीं कर वही, पाते फिर तो थोड़ा कोडिंग। दोनों चीजें हेक्टिक हो जाती है, साथ में कॉप अप हम्म। करना। और फिर कैन यू टेल योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी, कैसा, क्या क्या प्रिपेयर किया था? तो देखो, एक्चुअली बीटेक में मैं उतना कोडिंग किया नहीं था, मैं अभी बताया। ठीक है, मेरा लीड कोड में आई थिंक 70 प्रॉब्लम्स हुए थे, एंड जीएफजी में कुछ 150 समथिंग। ठीक है, तो एमटेक फर्स्ट ईयर में आके मुझे पता चला इधर सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कोडिंग में हैं, बट एमटेक हम्म। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग कोई भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग कुछ भी कोडिंग नहीं कर पाए थे। तो वही। मैं स्टार्ट किया दिसंबर, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर एंडिंग, दिसंबर 1 से मैंने चालू किया कोडिंग प्रिपरेशन फ्रॉम लीड कोड एंड ऑल द यूट्यूब मटेरियल्स। ओके, तो मैंने प्रिपरेशन किया लीड कोड में, आई थिंक 900 प्लस प्रॉब्लम किया विद इन 1 ईयर, बिफोर 1 दिसंबर डे 1। ओके, एंड उसके साथ हमारा इंटरव्यू के लिए गेट का कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हाँ। डीएसए राउंड तो होता ही है, उसके बाद गेट का कोर सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो लाइक ओएस, डीबीएमएस, एसटीडीएमएस। सी एंड सीओए। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं, तुम्हारा जो गेट का नॉलेज होगा वही काफी होगा, क्योंकि तुम अगर रैंकर हो तो तुमको वो बेसिक कॉन्सेप्ट सब आता ही फिर होगा। तो हाँ, वो ठीक तो। है, तो उसको रिवाइज किए, एंड उसके साथ साथ जो हमारे हर एक, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में ऐसा ही होगा कि हर एक सब्जेक्ट हम लोग जो चूज करें इलेक्टिव्स, उसके साथ एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट तो रहता ही है। ठीक बिल्कुल। है, तो हम लोग को वो सारे प्रोजेक्ट्स जो किए हैं उसको फिर से वेरीफाई किए कि ठीक किए थे कि नहीं, उसको फिर से रिवाइज किए, क्योंकि हम लोग अगर उसको रेज्यूमे में डाल रहे हैं तो उसको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, होना चाहिए। वही, ठीक हाँ। है, तो सारे सब कुछ करने के बाद आई थिंक, या मतलब और टिपिकल सम एचआर क्वेश्चंस बस। सही है। सो कैन यू टेल लाइक प्लेसमेंट स्टेट्स कैसे थे आपके टाइम एंड मेरे लास्ट ईयर में टाइम, भी? हाँ 2024, आई थिंक 2023 से थोड़ा खराब गया था। ठीक है, अच्छा। तो 2024 में हमारा
फेज 1 के बाद भी ना कुछ कुछ बच्चे बचे हुए थे, हम्म। अच्छे खासे बच्चे बचे हुए थे अच्छा। फेज 2 के लिए। तो मेरा मेरा प्लेसमेंट हुआ था डे 1 एंड डे 3 दोनों में। थोड़ा मतलब लिस्ट आने में लेट हुआ था। तो अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट डे 1 एंड सैमसंग रिसर्च नोएडा इन डे अच्छा। थ्री तो दोनों कंपनी में मेरा हो गया था लिस्टिंग। ओह, एंड नाइस। मुझे प्रेफरेंस दिया गया था कि कौन सा मैं चूज करूंगा, तो आई हैव चूज माइक्रोसॉफ्ट हम्म। ओवर सैमसंग। तो इस साल मैं अगर बोलूंगा कि प्लेसमेंट क्या कितना गया है, मतलब पिछले साल से हमारे साल से इस बार अच्छा गया है प्लेसमेंट। हाँ, इस बार शायद काफी With अच्छा। respect to, yeah, with respect to our roles and base package and all everything, तो मैं बोलूंगा कि इस बार बेटर है पिछले साल से। लास्ट ईयर रिसेशन की वजह से मोस्टली कॉलेजेस में बहुत इफेक्ट आई हाँ थी। मोस्टली मतलब खराब गया था सब बहुत ही। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, सब हाँ जगह, और हम लोग आई सोचे गेस। नहीं थे कि इतना। हाँ, वही। नेक्स्ट ईयर शायद इससे ज्यादा अच्छा जाए प्लेसमेंट, आई होप, मतलब इस हाँ साल से होपफुली। भी अच्छा। वही। यस। और हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट विल यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन ट्रिपल आईआईटी बॉम्बे? क्या क्या चीजें माइंड में रखनी, या व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू बिफोर कमिंग टू आईआईटी बॉम्बे? ओके। तो बेसिकली देखो, तुम्हारा अगर गेट में रैंक हो गया है विद 100, तो तुम श्योर हो जाओ कि तुमको आईटी बॉम्बे का मिल ही रहा है। ठीक है। हम्म। तो इसमें तुमको जस्ट देखना पड़ेगा कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी आईआईटी मद्रास जो भी ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमको कोई भी आईटी चूज करो उसके पहले थोड़ा बहुत ना प्रिपरेशन करके जाओ। तुमको अगर गेट के बाद 3 महीने मिल रहा है जो सबको मिलता है गेट गेट एग्जाम के बाद, तो उसमें मैं बोलूंगा कि मैं जो किया था टाइम वेस्ट किया था, तो उसमें थोड़ा तो एंजॉय करो, उसके साथ साथ थोड़ा कोडिंग, थोड़ा डीएसए अच्छा कर लो एंड थोड़ा मतलब कुछ प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है। कोई स्किल सेट सीख लो। तो इस टाइम को मतलब अगर तुम अच्छे से थोड़ा एमएल का भी बेसिक सीख लोगे, लिनियर अलजेब्रा एंड ऑल एंड पाइथन ऑल, तो तुमको बहुत एज मिलता है बाकी लोगों से, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर ना वही सब कुछ होगा। ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इस 3 महीने में तुम अच्छे से कोडिंग कर लो एंड उसके साथ साथ तुम थोड़ा स्किल सेट में इम्प्रूव कर लो। बस और कुछ नहीं, बाकी एंजॉय करो, और कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी गेट का रैंक हो ही गया होगा। हाँ, वही। अब तो बहुत प्रिपेयर करके इतना रैंक लाके ऐसा कि थोड़ा दोनों चीजें मेंटेन करना जरूरी है, फिर एंजॉय भी करो और साथ साथ थोड़ा कोडिंग भी कर लो कि उधर जाके फिर प्रॉब्लम ना आए। हाँ हाँ हाँ। बिकॉज देखो फर्स्ट उधर जाके सेमेस्टर भी। तुमको एंजॉयमेंट भी मिलेगा, बट उसके साथ साथ तुमको बहुत हेक्टिक हेक्टिक भी होगा सारे शेड्यूल। तो अगर तुम खुद से इधर कुछ भी कर लो वो तुम्हारा प्लस पॉइंट होगा हमेशा। हाँ, वही बोनस मिलेगा ऐसे। हम्म। सही है फिर। सो ये सब क्वेश्चंस मेरे एंड से थे। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाइक प्रेजेंट क्वेश्चंस विच जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो हाँ 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 उनके श्योर डाउट्स है, तो जस्ट श्योर। एक मिनट। इज इट विजिबल? हाँ। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर नॉन सीएस ब्रांचेस फॉर एमटेक ऑल्सो एलिजिबल फॉर एसडी और डेटा साइंटिस्ट एमएल रोल्स? यस, इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज यस। मीन वो लोग सीएस का सिर्फ फिल्टर नहीं लगाते। बहुत ओके। स्पेसिफिक कुछ कंपनीज होता है कि जो सिर्फ सीएस का फिल्टर लगा के तुमको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा। सो आई हैव एन तो तुमको ऑफर अगर फ्रॉम। हाँ, हाँ ठीक है। बोलो बोलो। I have an offer from IITB IEOR, which has some overlap with MLDS, and I will not be getting offer from CS. So, is it logical to take offer and prepare for MLST roles? IEOR मेरा पूरा आइडिया तो नहीं है कि क्या होता है, बट हाँ इट्स मोर एमएल स्पेसिफिक। एंड इसका कोर्स करिकुलम ना बहुत अच्छा अच्छा होता है। तुमको एकदम मशीन लर्निंग पूरा बेस से सिखाया जाएगा इस ब्रांच में। तो इसका अच्छा। कोर्स सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा कोर्स सिलेक्टेड है। एंड फॉर प्लेसमेंट इफ यू आर गुड एनफ इन योर एमएल एंड हम्म। कोडिंग, देन यू कैन गेट एनी ऑफर आई थिंक। फॉर एमएल इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन सीएस। हाँ, बिकॉज कंपनी तो सब कंपनीज में बैठ हाँ। नहीं देती है, तो फिर अगर सही है तो फिर यस, कुछ। अगर तुम्हारा स्किल सेट अच्छा होगा तो तुम प्लेस हो जाओगे। ओके, सो व्हाट इज फी स्ट्रक्चर फॉर एमटेक सीएससी टीए इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, आई अप्रोक्सीमेट? थिंक ये तो ब्रोशर में मिल जाएगा, मतलब हाँ, वही, ये अप्रोक्सीमेटली आई तो थिंक सब। 36,000 ऐसा कुछ था, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वही एग्जिट फी स्ट्रक्चर के लिए बेटर है एक बार
देख लो उधर ही साइड एंड पे। ये हर साल अपडेट भी होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ कि इस वही साल का जो थोड़ा ब्रोशर इंक्रीज है होता उसमें, रहता है। हाँ, इस साल का जो ब्रोशर है एक बार गो थ्रू कर लो। About direct admissions on the basis of rank and interview process. हाँ, तो बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन हमारा एमटेक टीए जो होता है, तो सारे डायरेक्ट एडमिशन होता है। तुमको अगर रैंक मिल रहा है विद इन 150 or हम्म। 100, then you can get the idea कि you will get the opportunity to for MTech TA, okay, direct admission. And for the rest of the three branches like MTech RA, MS TA, and MS RA, for these there will be one coding test, okay, and after हम्म। that it will be there will be one interview. So basis of two scores, these two scores you will be selected. Okay, so following questions are mostly about MS theoretical system in IIT Bombay, mindset of him. Tell me purely based on placement, that is money perspective, no research, etc. And mostly one's aim is to get AIML job because as it is trending and its future is also like worst case getting ST also fine. So let's say one got MS offer that too sadly in TS but not MTech. So TS is the hardest stream to get into. ये क्या लिखा है? Only geniuses are able to do TS research. Did you even आई डोंट नो लाइक आंसर भी लिख लिया है शायद उन लोगों ने कुछ तो। देखो, टीएस मतलब थियोरेटिकल सिस्टम, राइट? तो हम्म। थियोरेटिकल सिस्टम इज नॉट अबाउट कोई डम बेस्ड ऐसा भी कुछ लिखा था, कोई बोला था बहुत हाँ हार्डेस्ट, वही ऐसा ऐसे। कुछ नहीं है। तो बेसिकली जिसको अगर एल्गोरिदम ये सब में बहुत अच्छा लगता है तो वो चूज कर सकता है। एंड तुम्हारा, तुम एमटीपी किस में कर रहे हो, ये एकदम ही मायने नहीं रखता कि तुमका प्लेसमेंट तुम्हारा कहाँ पे होगा, कौन से डोमेन में हम्म। होगा। तुम अगर एमटीपी कर रहे हो, जैसे मेरा एमटीपी था एआईएमएल कंप्यूटर विजन डोमेन में, एंड आई एम वर्किंग एज ए एसडी, ठीक है। एंड मेरा जो सेकंड जॉब था वो भी एसडी में मिला था। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट किस में है वो एकदम ही मैटर नहीं करता, ठीक है। बट जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो अच्छे से करो, क्योंकि तुमको इलाबोरेट करना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो तुम कोई भी ले लो, थियोरेटिकल सिस्टम ले लो, नॉर्मल सिस्टम ले लो, एंड एआईएमएल ले लो एज ए एमटीपी ब्रांच, तो तुम्हारा प्लेसमेंट उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा सही है। फिर सपोज वन डू प्योरली एमएस रिसर्च एंड सक्सेसफुली नॉट एआई और नॉट सिस्टम, देन व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर देयर फॉर हिम बेस्ड ऑन डूइंग रिसर्च इन टीएस एंड। तो ऑलरेडी आई थिंक ये हाँ सेम ये चीज तो मैं बोल सेम दिया, राइट? ऊपर वाला ही है। हाँ सो व्हाट काइंड ऑफ हम्म। रोल्स मोस्ट विल कम टू प्लेसमेंट, ये भी हो गया। पैरेलल स्टार्ट रोल्स तो सब मतलब बैठने ही देते हैं ना सब कंपनीज में ऑलमोस्ट हाँ हाँ हाँ, फॉर ऑलमोस्ट। एमएस टीएस ऑल्सो। Tell with respect to average guy. I have heard that MS graduates in मैं IIT एवरेज गाई Bombay हूँ। struggle with placement because recruiters are not familiar with MS degree. And even place cell don't recruit MS people because of some politics there. Is this accurate? पॉलिटिक्स का क्या MS था? के नहीं नहीं, MS के पॉलिटिक्स का ऐसा कुछ नहीं है। देखो मतलब सारे चीज का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, एमएस रिप्रेजेंटेटिव, एमटेक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हम लोग का जो एमटेक का रहता है, तो सारे चीज देखते हैं कि एमएस का भी, हम्म। फॉर एमएस भी कंपनी शॉर्टलिस्ट करे, एमटेक भी शॉर्टलिस्ट करे, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स नहीं होता। Okay, so I heard that for pursuing an MS in CS or IS, they can get good placement because but because of professor's connection with big companies and they give referral. Is this true? आ, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, आईटी बॉम्बे में जो प्रोफेसर्स है, बहुत ही बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, तो उन लोगों का रेफरेंस एंड कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली कंपनीज, मतलब आई थिंक ये पॉजिटिव सेंस ही है कि अगर तुम्हारा गाइड का बहुत अच्छा रेफरल एंड कनेक्शन है, हाँ तो विथ दैट रेफरल इफ यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटी, इट्स गुड, राइट? एग्जैक्टली। तो हाँ, ये मिलता है। बहुत अच्छे प्रॉफ है एंड बहुत अच्छे प्रॉफ का कनेक्शन भी है, तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर तुम अच्छा काम करोगे तो प्रॉफ के अंडर। हाँ सही है। So let's strict to AIML job roles as it is trending. Leave ST. What are the placement states for MSTS? आई Would you थिंक सेम recommend? चीज पूछा है। हाँ वही सेम चीज ही आ रही है। प्लेसमेंट तो सेम ही है एमएस और एमटेक का हाँ, ऐसा मैं तो ऑलरेडी है। बोल दिया कि हाँ, मतलब वही सेम ही सारे, चीज। मतलब तुमको
तुम्हारा एमटी भी कौन से डोमेन में है डिपेंड नहीं करेगा, तुम्हारा प्लेसमेंट कौन से डोमेन में होगा। अच्छा, ये मतलब कंपैरिजन पूछ रहे हैं। और वुड परस्यूइंग एन एमटेक फ्रॉम बिट्स इफ पेइंग एमटेक फीस इज नॉट इशू, व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन? एम ये आईटी तो, बॉम्बे, हाँ एनी वही। एनी। So does IIT Bombay have a separate robotics and AI oriented program like IIT Mandi आई has डोंट more थिंक सो। focus? आई डोंट Okay. थिंक सो कि सेपरेट एआई प्रोग्राम है फॉर एमटेक। अच्छा, तो रोबोटिक्स वाला था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन स्किप करता है। और इज एनी जॉइंट PhD sandwich program present in IIT Bombay? If yes, then which universities? आई डोंट थिंक कि अभी भी है, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है। कुछ न्यूज़ आ रहा था टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ, बट अच्छा। आई डोंट नो। So recently I was in a group IIT Bombay 2025. Someone posted their COAP response, and on that group itself, someone messaged to prefer IIT Madras. IIT Bombay people told to prefer Madras. What is the case? Apart from 2024, placement was 100%. What changed in these 2 years? देखो, आईआईटी मद्रास का भी 100% है एंड आईआईटी बॉम्बे का भी 100% है, बट आईआईटी मद्रास का बैच साइज थोड़ा कम होता है आईआईटी बॉम्बे से, तो उसके लिए प्लेसमेंट थोड़ा That's जल्दी हो right. जाता है। एंड इंटर्नशिप आईआईटी मद्रास अलाउ करता है, तो बहुत लोग इसके लिए प्रेफर करते हैं आईआईटी मद्रास। एंड एमटेक एंड बीटेक का आप बोल सकते हो कि थोड़ा कम टसल होता है इन आईआईटी मद्रास देन आईआईटी बॉम्बे, अच्छा। बट So, बोथ आर गुड हाँ, बिकॉज दोनों में 100% हो जाता है। हाँ, exactly. Or do we get assignments which we can use in our resume? यस। How is the daily routine in IIT Bombay? लाइक Like बहुत कुछ करना पड़ता है classes? उसके साथ साथ। हाँ। मतलब क्लासेस का कोई टाइमिंग नहीं रहता। तुमको सुबह 7 बजे भी क्लास हो सकता है एंड शाम 7 बजे भी क्लास हो सकता है। ठीक है, एंड प्रॉफ कभी कभी भी बोला सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सारा दिन ऐसे ही बीतता है, तुमको पता नहीं होगा कि कौन से टाइम में तुमको क्या करना होगा, बट अल्टीमेटली बहुत सारे चीज़ के साथ साथ तुमको सारे डेली जो टास्क है उसको तुमको टाइम मैनेज करना तुमको सिखा देगा आईआईटी। So is getting placement in Bombay very tough since they have big websites and other branches to compete with the same? देखो, टफ तो है, इसके लिए तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तुम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में हो, तो उसमें सारे बंदे बहुत अच्छे होंगे, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम आईआईटी बॉम्बे में अगर मतलब तुम आओगे तो तुमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर तुमको उसमें भी नहीं मिल रहा तो तुम आईआईटी बॉम्बे में ना आके भी कुछ नहीं मिलेगा। Exactly. ये नॉट नॉट ओनली फॉर आईआईटी बॉम्बे, मैं टॉप 5 आईआईटीज एंड टॉप 2 ट्रिपल आईटीज में बोल रहा हूँ। Yeah, ये तो है. Plus now IIT Bombay just left with the brand value since I got many negative reviews about prestigious institute. वो तो तुम कोरा में मतलब कोरा में खोलोगे तो सारे आईआईटीज का तुम नेगेटिव तो हाँ मिल ही भाई, जाएगा ना, कुछ कुछ किसी तो के साथ तो मिलेगा नेगेटिव ही. तो मिलेगा सब ही ना। तो सब कॉलेजेस नेगेटिव में में फोकस करते रहोगे तो नेगेटिव मिल ही जाएगा, भाई. बट पॉजिटिव थिंक बहुत सारा है। पॉजिटिव चीजें भी देखो. In MTech CS, is there a flexibility that someone can take all courses related to AI ML? यस, ये तो हाँ होगा. मैं खुद लिया था। कंपल्शन है कि नहीं ऐसा कुछ कि has to learn OS for just sake of passing this course, or नहीं he ऐसा can नहीं है, avoid बट it? एक दो लैब है, मैं बोला कि 3 कंपलसरी है, उसमें से एक कम्युनिकेशन स्किल्स है एंड आई हम्म. थिंक वन सॉफ्टवेयर लैब एंड अनदर इज वन अदर सब्जेक्ट, बट नॉट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस अदर 9 सब्जेक्ट्स आर नॉट कंपलसरी। यू कैन Okay. चूज एनीथिंग। सही है. So how risky are sport rounds? Do IITs inform us what that whether they are going for sport rounds or not? I think IITs do inform in their through their websites, but spot round are very risky. I'll not suggest anyone to go for spot rounds. Means if you have So, another हाँ. offer from CCMT or other triple ITs direct offer, then you can go for the spot round. You can risk, but otherwise, I will not suggest you. Hmm. So just wanted to know that what can be the roadmap for this remaining time, June, if I want to do well in first sem is usually more hectic in MTech. ये तो. रोड मैप क्या होगा? आईआईटी के अंदर रोड मैप क्या ही होगा? तुमको जो मिल रहा है वो करते रहो, और क्या। डेली टास्क करते रहो। तुम नहीं नहीं, अभी लास्ट में अभी के मतलब, लिए बोल रहा है. लाइक बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज. अच्छा,
और कितना टाइम है? और तो ज्यादा टाइम है भी नहीं, राइट? वही 1 महीना एक से डेढ़ जितना। महीना है। हाँ, तो हाँ तुम्हारा जो 1 महीना है तो तुम उसके अंदर तुम कोडिंग अच्छे से कर लो। बेसिक जो तुम्हारा लीड कोड का इजी एंड मीडियम प्रॉब्लम है एंड थोड़ा हार्ड, तो ऐसे कर लो कि 1:2:2 रेशियो में। ठीक है। सही है। So I got admission in MS by Research and C Minds at IIT Bombay. So I want to know how are the placement opportunities. I have heard that it is a new course, so there are lesser placement for C Minds. Is it true? Like, will I be able to get a decent job after completion of MS? देखो, MS सीमाइंट्स प्रोग्राम का मैं जब निकला था, उस टाइम सीमाइंट्स तक फर्स्ट बैच नहीं निकला था, ठीक है। मेरा अच्छा। जब पास आउट हुआ था, तो आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई डोंट थिंक कि इतना कुछ खराब होगा। बट Mm-hmm. या आई डोंट हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर नाउ। So what is the gender ratio at IIT Bombay? वेरी लेस। बट व्हाट? ये कौन पूछा है? पता नहीं कुछ भी। So last gate rank highest that got admission into IIT Bombay this year. दिस ईयर मुझे पता नहीं, बट हमारे साल में जो था 2022 में, जनरल आई थिंक 54 में क्लोज हो गया था, 54 या 56 में। अच्छा। बट आई थिंक उसके बाद थोड़ा, मतलब विद इन 100 तुम एज्यूम कर सकते हो हम्म। जनरल। सही है। सो हाँ, ये इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस एंड आई होप आप सबके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रहा हो। सो एनी लास्ट moment advice or anything you want to say, you can say. Other than that, like, we are ending the session. या मतलब सब कुछ बता ही दिया, बस यही हाँ, कि ऑलमोस्ट कवर्ड ही है सब चीजें तो। हाँ, तो यही है कि तुम्हारा गेट जर्नी से तुम्हारा आईटी का जर्नी, तो तुम गेट में जो पढ़े हो, मैं ये बता के रहा हूँ कि तुम गेट में 1 साल या 2 साल में जितना पढ़े हो, तुम आईआईटी में एक सेमेस्टर में वो पढ़ोगे। ठीक है, तो हाँ उसके लिए वही। मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आईआईटी में बहुत चिल रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है। बट हाँ, आईआईटी लाइफ बहुत ही अच्छे से तुम एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, वो 2 साल तुम्हारे लाइफ में पूरा एकदम अलग से रहेगा। वो 2 साल तुम कभी भी वही। चेरिश कर सकते हो उस 2 साल को। ठीक है। तो या मतलब इस 2 साल के लिए एंड अच्छा प्लेसमेंट एंड अच्छा कलीग्स एंड अच्छा इन्वायरमेंट्स, इन सब के लिए तुम अच्छे से प्रिपेयर करो गेट के लिए। ठीक है। Yeah, all the best. And if you have any other question, you can comment it in this within this video, and you can reach out me or Mansi in LinkedIn also. Okay, so thank you so much. So we are ending the session. Bye Yeah, bye. thank you, Mansi. Bye Bye. bye.